Good afternoon, students. Welcome to online classes. This is the Kiran Sir's voice. In last period, we discussed about the lesson number 2nd, January night. In this lesson, we are discussing about the Munni and Halku. Both want to means Halku want to give the money to the landlords, but Munni having a problem because this money Halku save for the blanket, and this is the cold day, very much cold day, so that's why he want to purchase the blanket for his Halku. So that's why Munni avoid the money to given to the landlords. Okay, in first videos we discuss about that. They are discussing regarding the money, and actually Munni said that I won't give you the money I want. मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. So that's why Munni said. See the next paragraph. Sadly, Halku said, then I will have to put up with his abuse. What is the meaning of this line? Actually, Halku want the money from Munni, but Munni refused to give the money. So that's why sadly, in bad way, Halku said to himself, वो खुद को बोला, थोड़ी धीरे से बोला, then I will have to put up with his abuse. तो फिर मुझे अब लैंडलॉर्ड के कुछ शब्द बैड वर्ड्स भी सुनने पड़ेंगे. अगर वो गालियाँ भी देता है तो भी सुनना पड़ेगा. वाई? बिकॉज हल्कू want to give the money, but Munni not given the money to given to the landlords. Okay? The bitter truth in Halku's words came charging at Munni like a wild beast. So the bitter truth in Halku's words, हल्कू के वर्ड्स में वो जो कड़वाहट थी, सच्ची कड़वाहट थी, वो एकदम सी चेंज हो गई, चार्जिंग हो गई मुन्नी के दिल में. वाई? बिकॉज दिस वर्ड्स टीजिंग टू अ लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, एक भयानक जंगली राक्षस की तरह वो वर्ड्स, हल्कू के वो वर्ड्स मुन्नी को चुभे. शी वेंट टू द निश इन द वॉल. She went to the niche in the wall. What do you mean by niche? Niche, this is the generally we use in villages. Niche means कनोड़ा, जो दीवार को रहता है. This is called the कनोड़ा. She went to the niche in the wall, took out the rupees and handed them over to Halku. And actually and finally, Munni feel bad. Why? Because हल्कू सेड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस की लैंडलॉर्ड मुझे अभी कुछ भी वर्ड्स बोलेगा. फॉर दैट मुन्नी गिवन द मनी टू द हल्कू, एंड सो दिस इज द स्टोरी. शी वेंट टू द नीश इन द वॉल, टुक आउट द रुपीज़ एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू. हल्कू को पैसे 3 रुपीज़ दे दिए. देन शी सेड, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम. गिव अप फार्मिंग दिस टाइम. What she said? The Munni said that give up farming this time. इस बार तो ठीक है, अभी पैसे दे दो, पर अगले टाइम से जो फार्मिंग है, टेनेंट फार्मिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेनेंट फार्मिंग, गिव अप द टेनेंट फार्मिंग. वाई? बिकॉज व्हेन दे डूइंग द टेनेंट फार्मिंग, दे डू नॉट गेट द प्रॉपर प्रोडक्शंस ऑफ फ्रॉम दैट फार्मिंग, बिकॉज they do not give the money to the landlord also. So that's why Munni said give up the farming this time. If you work as a hire labor, you will at least get enough food to eat from it. What is said Munni? Munni said to the Halku, if you do the hire labor, अगर आप एक हायर लेबर की तरह काम भी करते हो, तो यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट. उसमें से आपको भरपेट खाने के लिए भी खाना मिलेगा. दिन रात आपको खेती पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी. सो दैट्स वाई मुन्नी सेड यू हैव टू डू द हायर लेबर. क्योंकि आजकल के ज़माने में लेबर वर्क ही हैप्पीली रहते हैं, एंड दे आर हु दे आर डूइंग द फार्मिंग, दे हैव टू सर्व डे एंड नाइट इन द farm also. Find work, farming someone else's land. So that's why Munni said give up this tenant farming, do the higher labor work. So this is the fine work, farming someone else's land. किसी के खेती के ऊपर काम करो तो वो अच्छा है. ये
टेनेंट फार्मिंग करना छोड़ दो, द मुन्नी सेड टू द हल्कू. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड टिल हियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. सी द नेक्स्ट. हल्कू टुक द मनी एंड वेट आउटसाइड. उसने पैसे लिए और वो बाहर चला गया. लुकिंग एज दो ही वेयर टेयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे. ऐसा दिख रहा था कि अपना हार्ट निकाल के वो किसी दूसरे को दे रहा. बिकॉज ही सेव द 3 रुपीज़ फॉर द ब्लैंकेट बिकॉज दिस इज़ द वेरी कोल्ड डेज. और इसीलिए वो पैसे देने के लिए लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ा. तो दिस इज़ वेयर टीयरिंग हिज हार्ट आउट. अपना दिल फाड़ के वो देने जा रहा है, ऐसा उसको फील हुआ. ही हैड सेव द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क पाइस बाय पाइस फॉर हिज ब्लैंकेट. अपने पैसे से पाई पाई जमा करके उसने पैसे बचाए. फॉर विच रीज़न? फॉर परचेसिंग द ब्लैंकेट. ब्लैंकेट खरीदने के लिए उन्होंने पाई पाई बचाए. एंड दिस मनी हैव टू गिव द लैंडलॉर्ड. दिस इज़ द पेनफुल प्रॉब्लम, पेनफुल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द हल्कू. सो दैट्स वाई अपना दिल चीर के वो पैसे दे रहा है, ऐसा उसे फील हुआ. टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे. विथ एवरी स्टेप his head sank lower under the burden of his poverty. आज वो अपना सारा बर्डन, गरीबी का बर्डन वो फेंकना चाहता था. बिकॉज ही वॉन्ट टू गिव द ब्लैंकेट, सॉरी ही वॉन्ट टू परचेज द ब्लैंकेट. पर वो परचेस नहीं कर सकता था, बिकॉज दे हैव टू गिव द मनी टू द लैंडलॉर्ड. टेनेंट फार्मिंग कर रहे थे, दैट्स वाई ही हैव टू गिव द मनी टू द लैंडलॉर्ड. So according to that, he want to purchase the blanket, and this is the very cold day, but this is the very difficult condition. He have to give the money to the landlord instead purchasing the blanket. So this is the burden of the poverty. Poverty means गरीबी का burden वो अभी निकालना चाहता था. इस गरीबी के अंडर प्रेशर से वो निकलना चाहता था. So that's why he going it away. Okay, so students, this is the first part we completed here. In the next period we will complete the second, third and fourth parts also. Okay, today we stop here. Okay, thank you students, have a nice day.